ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉਡਾਨ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4। ਦੈਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि कॉन्सैप्ट तो बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इस कॉन्सैप्ट में एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सब तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट की होता है। कॉम्प्लीमेंट दा मीनिंग है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ नूं पूरा करती है या उसनूं कंप्लीट करती है तो वो की होंदी है, एक कॉम्प्लीमेंटरी होंदी है। लेट्स सपोज आप एक सैट लिया, अपने को एक सैट है, एक यूनीवर्सल सैट है जिस दे विच सारे के सारे एलीमेंट्स की ने आउंदे नेगे। इस अपन एक होर सैट लिया, सैट ए। ठीक है जी, हुण यह सैट ए है। इस सैट ए नूं इहो जी किहड़ी चीज़ है जिहड़ा कि इस नूं पूरा कर दूगी, इस नूं यूनीवर्सल बना दूगी। इहो जी किहड़ी चीज़ है जिहदे नाल मिल के अपना सैट ए पूरा का पूरा यूनीवर्स विच कन्वर्ट हो जाए। दैन वो जिहड़ी चीज़ है, अगर ये जो अपना एरिया बाकी बचा है, इस एरिया के नाल मिल के ये पूरा का पूरा कंप्लीट यूनीवर्स बन सकता है। ठीक है जी। दैन जिहड़ा ये बाकी का बचा एरिया है, इनू आपां डिनोट करांगे ए डैश के नाल। ठीक है जी। ए डैश की है, वह कॉम्प्लीमेंटरी है। वो कॉम्प्लीमेंटरी है जिहदे नाल मिल के ए सैट है वह पूरा का पूरा की हो जाएगा जी, यूनीवर्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंटरी नूं आपां डिनोट करते हैं ए डैश के नाल। क्लीयर है जी। हुण जे सैट ए ते ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟ A ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ for all set of x such that x belongs to universe and x does not belongs to set A। ठीक है जी। जो x है अपनी जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है वो पूरे के पूरे यूनीवर्स में बिलोंग करता है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਟ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸੈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ A ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਟ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि अगर सैट ए ते सैट ए दा कॉम्प्लीमेंट आपस दे विच मिल जान, यूनियन का मतलब की हुंदा है इकट्ठा करना, दोनों ने इकट्ठा कर दिता जाए तो की बनेगा, एक यूनीवर्स बनेगा। क्लीयर है जी। फिर उस तो बाद अगर सैट ए ते सैट ए दी कॉम्प्लीमेंट दे विचों कुछ कॉमन कढना होवे, आपां नूं पता है सैट ए ते सैट ए दा कॉम्प्लीमेंट हुंदा दोनों अलग अलग चीज़ां नेगियां। ठीक है जी। उन्हां विचों कॉमन कढांगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुहानूं डायग्राम दिखाई सी कि ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ A ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਸੈੱਟ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ A ਤੋਂ ਜੋ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 5 ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी A इंटरसैक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किहदे कोल आएगा, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ इंटरसैक्शन का साइन आएगा। अगर अपने इंटरसैक्शन का कॉम्प्लीमेंट ਕੱਢਣਾ है तो अपने कोले यूनियन का साइन आएगा। क्लीयर है जी। फिर इस तो बाद अगर अपने A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ਕੱਢਣਾ है तो अपने कोले A ही आएगा, क्योंकि अगर A ਨੂੰ उल्टा किया उस तो बाद ए दे उल्टे फिर उल्टा करता देन वो दोबारा ए बन जाएगा।
क्लीयर है। देन इस तो बाद अपने यूनीवर्स का कॉम्प्लीमेंट, हुण एक पूरा यूनीवर्स है, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ करना अपने, इस यूनीवर्स का कंप्लीमेंट की होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। देन 5, अगर 5 का कंप्लीमेंट करना है, हुण इस तरह समझो, एक अपने को बर्तन है भरिया होया, एक बर्तन है खाली, ठीक है जी। हुण भरे हुए का उल्टा की होएगा, खाली, खाली का उल्टा की होएगा, भरिया होया। देन तुसीं इहनूं ओपोजिट मीनिंग कह सकते हो, विरोधी शब्द कह सकते हो, ठीक है जी। खाली का उल्टा भरिया होया की है, यूनीवर्स है। हुण यूनीवर्स का उल्टा भरिया का उल्टा की आएगा जी, खाली आएगा। क्लीयर जी। चलिए अपने कुछ प्रॉपर्टीज की आप शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 द फर्स्ट क्वेश्चन। दैन ये अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिहदे अपने को कुछ अपन पार्ट्स गिवन ने जो अपने सॉल्व करने ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਨੇ A B ਤੇ C, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ C ਹੈ, A B ਤੇ C ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ए सैट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए ਸੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ए ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ए ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ए ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਜੋ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ए ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 1 2 3 4 1 2 3 4 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 5 6 7 8 ਐਂਡ 9। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਐਂਗਲ B ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈੱਟ B ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ B ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ B ਦੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 2 4 6 8। ਤਾਂ 2 4 6 8 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ 1 3 5 7 ਐਂਡ 9। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ A ਯੂਨੀਅਨ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, A ਯੂਨੀਅਨ C। ਪਹਿਲਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ C ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ C, ਤਾਂ A ਤੇ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆ ਗਏ, 1 2 3 4 1 2 3 4 ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 5 6 3 4 ਆ ਚੁੱਕੇ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 5 ਤੇ 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, जो बचेंगे अपना की होगा जी, ਇਹਦਾ कंप्लीमेंट होगा। देन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस हो चुके ने, जो बचे वो 7 8 एंड 9। सो दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन C। देन इस तो बाद अपना फोर्थ पार्ट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ A यूनियन B ਦਾ कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ਤਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ A ਯੂਨੀਅਨ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ A ਯੂਨੀਅਨ B ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, A ਯੂਨੀਅਨ B। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, A ਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 2 3 4, ਫਿਰ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 2 4 6 8 2 4 ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 6 ਐਂਡ 8। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 2 3 4 1 2 3 4 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ, 6 ਤੇ 8 बचे 5 7 ਤੇ 9 5 7 9। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਗਰ A ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ B ਮਾਈਨਸ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ B ਮਾਈਨਸ
C the difference. So B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਤੇ C ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ B ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 4 6 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 4 5 6। ਹੁਣ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਬਚਿਆ 8। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B - C। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਰਿਮੂਵ। 2 ਤੇ 8 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 1 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫਸਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H ਤੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈੱਟ A, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ A B C। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ A ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ A ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ। ਸੋ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ A B C ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚੇ D E F G ਐਂਡ H। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ D E F G। D E F G ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ A B C, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਚਿਆ H। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ C ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ C। ਸੋ ਇੱਕ B ਬਚਿਆ, ਫਿਰ D ਬਚਿਆ, E ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F G ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ H। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈੱਟ D ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ F G H ਤੇ A। ਸੋ ਜੋ ਬਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ B C D ਐਂਡ E। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫॉर ऑल वेल एलिमेंट्स ऑफ x such that x is an even natural numbers। x ਕੀ ਹੈ, even natural numbers ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ even natural numbers ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ऑड ਬਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ for all elements of x is an odd natural numbers। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ for all element of x such that x is an odd natural number। ਹੁਣ odd natural numbers ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਫਸਟ ਨਾਲ ਦਾ x is an even natural numbers। ਤਾਂ ਜੋ even ਹੋਣਗੇ, even ਤੇ odd ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ x is a positive multiple of 3। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 3 6 9 12 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਬਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ 1 2 4 5 7 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, for all elements of x such that x belongs to natural numbers। x ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ x is not multiple of 3। हाँ, सारे नेचुरल नंबर्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, x is a prime number। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਟਸੈਲਫ ਤੇ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 3 5
7 11 13 17 है ना जी। दैन अपन ने ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। दैन ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। x ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟ x ਇਜ਼ ਨॉट ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾइम है चाहे कंपोजिट है, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾइम 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ बट कंपोजिट ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 4 ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, बट जो अपना 1 है वो ना तो प्राइम ਹੁੰਦਾ ना ही कंपोजिट ਹੁੰਦਾ। सो ਆਪਾਂ स्पेशल लिखांगे x is a composite number and x equals to 1। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स अपने 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, सो 1 ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੋजिट ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾइम ਹੈ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। और इस तो बाद x is a natural number divisible by 3 and 5। so ये भी सेम इधर ही लिखांगे for all elements of x such that x belongs to natural numbers but not divisible by 3 and 5। ਹੁਣ ਜੋ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ 3 ਤੇ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੋਣਗੇ, 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਬਟ 3 ਤੇ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, यानी कि 1 4 9 16 25 की ने जी परफेक्ट स्क्वायर ने। देन इन्हां तो इलावा इन्हां दा कंप्लीमेंट की होएगा x बिलोंग्स टू वो सारे नेचुरल नंबर्स बट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इट्स क्लियर। इस तो बाद जो अगले पार्ट ने ये थोड़ा ध्यान नाल समझियो। ठीक है, इस तो बाद अपना 8th पार्ट है जिस दे विच आपां दस्सिया गया है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x सच दैट x + 5 इक्वल्स टू a। सो ये अपने को एक इक्वेशन है x + 5 इक्वल्स टू 8। इन्हें सॉल्व करांगे तो अपने को 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी अपने को 3 आ जाएगी। ठीक है जी, x कितना है 3 है। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x belongs to natural numbers and x does not belongs to 3। हाँ x सारे नेचुरल नंबर ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। सो इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स बट 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ नॉट बिलोंग्स टू 3। क्लियर है। इस तो बाद इक्वेशन है 2x + 5 इक्वल्स टू 9। सो 2x 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 5 4। सो 2 मल्टीप्लाई चाहे सो इस साइड आके डिवाइड च 4/2 कितना आ गया जी 2 आ गया। सो x की वैल्यू अपनी आ गई जी 2। So we say x belongs to natural numbers and x does not belongs to कितना जी 2। क्लियर है जी। देन इस तो बाद अपना नेक्स्ट पार्ट है x is greater than or equal to 7। जो x है अपना 7 तो बड़ा है ते 7 ਦੇ इक्वल है, यानी कि 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन ये सारे की ने जी अपने इस सेट दे एलिमेंट्स ने। सो आप ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x is
less than 7 सॉरी इस तो पहला लिखा गया अपन x belongs to natural numbers and x is less than 7 ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ बचे सब तो छोटे बचे। सो x है जो सब तो छोटी है, x के नेचुरल नंबर्स है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि सब तो छोटे तो माइनस वाले भी आ गए ना। सो क्लियर होना जरूरी है कि x की नेचुरल नंबर है एंड x की ये सब तो छोटी है। ठीक है, इस बाद अपना लास्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड अपने को एक इक्वेशन दे रखी है जो बड़ी है की तो 10 तो। सो पहले अपन सॉल्व कर लेने हैं। 2x plus 1 is greater than 10। सो 2x 1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 होता जी 9। सो x is greater than 9/2। x की है 9/2 से बढ़ेगा। सो अपने को जो ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ x belongs to natural numbers and जो x है ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 9/2 ਤੋਂ बड़े एलिमेंट्स ने। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 9/2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। यानी ਹੁਣ x बड़ी सी और x की होएगी 9/2 ਤੋਂ छोटी होएगी या ਇਹਦੇ इक्वल होएगी क्योंकि 9/2 ਤੋਂ बड़े ने ना सारे 9/2 ਦੇ इक्वल ਤਾਂ है नहींगा। और की सीगा अपने को 7 भी सीगा इक्वल सीगा, देन अपन और इक्वल का साइन नहीं लिया क्योंकि 7 तक ऑलरेडी आ चुके हैं ना। तो इस कॉम्प्लीमेंट विच 9/2 तो नहीं आया ना, इस तो सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स आए हैं। देन ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 9/2 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। यानी एक्सरसाइज शुरू होने तो पहले अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़िया सीगियां जिन्हां विच अपनी दो प्रॉपर्टी सीगियां जिन्हां विचों पहली ये सी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किहदे कोल होएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने दो प्रॉपर्टीज पढ़िया सीगियां बट ये कोल क्यों हुंदा है आपां इहनूं थोड़ा प्रूव करांगे इस दे विच। ठीक है जी। सो अपन एक यूनिवर्स सैट गिवन है जिहदे विच 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक एलीमेंट्स ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਤੇ ਸੈੱਟ B भी गिवन है। सब तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलांगे की है जी A यूनियन B दा कॉम्प्लीमेंट। सब तो पहले अपन A यूनियन B फाइंड करांगे। A यूनियन B की है A यूनियन B, A ते B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ करना है। सो A ਦੇ एलिमेंट्स 2 4 6 8, फिर B ਦੇ एलिमेंट्स 2 3 5 7, 2 एक बार आ चुके हैं जी, फिर 5 3 ਤੇ 7, ये अपना आ गया A यूनियन B। देन ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ अपना जो एलिमेंट्स रह गए अपने यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। एक ਤਾਂ 1 रह गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, एक 9 रह गया। सो ये दो ही एलिमेंट्स होंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A यूनियन B। देन अपनी राइट हैंड साइड की है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सब तो पहला A का कंप्लीमेंट की है जी, A की है अपना 2 4 6 8, जो एलिमेंट्स रह गए यूनिवर्स में जो अपना A का कंप्लीमेंट है। सो A का कंप्लीमेंट अपना 1 है, 3 5 7 ते 9। फिर अपनी इंटरसेक्शन है जी B का कंप्लीमेंट। सो B ਦੇ ਵਿੱਚ जो एलिमेंट्स ਨੂੰ रिमूव कर देंगे, जो बचे 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया जी, 6 7 हो गया, 8 एंड 9। सो ये दोनों सैट के जो इंटरसेक्शन है वो की होएगी, ये दोनों सैटां के जो कॉमन पॉइंट्स ने वो होंगे। एक तो जी 1 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, एक 9 कॉमन आ रहा है। सो 1 ਤੇ 9 के लिए कॉमन पॉइंट्स ने। तो हुण आपां देखिए तो दोनों लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड की ने इक्वल लेंगे। ठीक है जी। सो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है जी। सेम इसी तरह अगला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अपनी सेकंड प्रॉपर्टी हैगी जो जिस दे विच अपना A इंटरसेक्शन B दा कंप्लीमेंट किहदे इक्वल सीगा A दा कंप्लीमेंट यूनियन B दा कंप्लीमेंट। ठीक है जी। सब तो पहला सेम आपां इहदी लेफ्ट हैंड साइड ਨੂੰ सॉल्व करांगे A इंटरसेक्शन B दा कंप्लीमेंट।
ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਹੈ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? पूरे यूनिवर्स के विचों सिर्फ 2 ਨੂੰ रिमूव करके सारे ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स की होंगे जी कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B 5 6 7 8 and 9। सेम इसी तरह इधर राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन। हुण A इंटरसेक्शन अपना यह जी A सैट है। A सैट का कंप्लीमेंट की होएगा? 2 4 6 8 एलिमेंट्स को रिमूव करके जो बचे हो ए सेट का कंप्लीमेंट होंगे 5 7 8 9 यूनियन बी दा कंप्लीमेंट। हुण बी सेट के एलिमेंट्स ने 2 3 5 7 2 3 5 ते 7 यानी कि कुछ प्राइम नंबर्स ने। जो एलिमेंट्स बचे 1 4 6 ते 8 9। ठीक है जी। ਹੁਣ दोनों सैट की अपन की करनी? यूनियन करनी है। दोनों सैट आप इकट्ठे करने हैं। सो 1 3 5 7 9 1 आ चुके हैं, 4 6 8 9 एक बार आ चुके हैं। हुण की है? दोनों सेम ने 1 3 5 7 9 8 6 4। हाँ जी, दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम ने। देन आप कह सकते हैं लैफ्ट हैंड साइड इक्वल हैगी राइट हैंड साइड दे। इट इज वेरीफाइड। क्लीयर है जी? तुहानू क्लीयर होया कि दोनों प्रॉपर्टीज ने जो किदां बणियां ने, किदां इन्हां नू प्रूव कीता गया वो आपां डिस्कस कीता है। सो मूव टू 5th क्वेश्चन। इस तो बाद अपने 5th क्वेश्चन दे विच आपां नू कहा गया है कि वेन डायग्राम्स अपने ड्रॉ करनियां ने। आपां नू 4 पार्ट्स गिवन ने, इन्हां चारां दी अपने की बनाउणी है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिस तरह मैं तुहानू स्टार्टिंग च एक बना के दिखाई सी कि अपने को एक की है यूनिवर्सल सैट है। ठीक है जी। अपने को 2 सैट ने ए ते बी। एक सैट है अपने को ए ले लो, एक ले लो जी बी ले लो। ये अपना ए है, यह की है जी अपना बी सैट है। ठीक है जी। अपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दी वेन डायग्राम बनानी है। हुण ए यूनियन बी की है? हुणे दोनों सैट नूं आपां ने इकट्ठा कर लिया, आपस दे विच यूनियन बनाती इन्हां दी। तो ए की बन गया अपना ए यूनियन बी। तो कॉम्प्लीमेंट की होएगा? जो इस तो बाहर होएगा इस एलीमेंट नूं इन्ने क पोर्शन नूं छड्ड के जो बाकी दा सारा एरिया अपना बचिया है वो अपना की है जी ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जो पोर्शन आपां ड्रॉ कीता है ये शेडेड पोर्शन ही अपना इहदा की है जी अपना सोल्यूशन है इस वेन डायग्राम दा। सो नेक्स्ट अपना की है ए दा कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दा कॉम्प्लीमेंट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ A ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਟ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। सो मूव टू 3rd पार्ट। इस भी अपने को 2 सैट ने, एक सैट ए है, एक सैट अपना बी है। ठीक है जी। तो कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कड्डो। हुण ए इंटरसेक्शन बी की है? हुण ए ते बी का इंटरसेक्शन यानी इन्हां दा कॉमन एरिया, इन्हां दोनों का कॉमन एरिया किहड़ा गा? ए वाला होएगा जी। ठीक है जी। इन्हां कॉमन एरिया होएगा ए वाला, बट इन्होंने कहा कि ए दी की करनी कॉम्प्लीमेंट कढ़ना है। हुण कॉमन एरिया तो ए वाला है। ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट की होएगा? सिर्फ एक कॉमन एरिया में छड्ड के जिन्ना भी बाकी पिछे एरिया रह गया वो सारा की है इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। हुण इस एरिया में छड्ड के किहड़ा एरिया रह गया? अपना सारा एरिया रह गया। इहदे विच अपना ए वाला पोर्शन भी आ गया, ए वाला भी आ गया। ये सारे का सारा एरिया अपना सिर्फ इन्ने क पोर्शन छड्ड के अपना की है? इहदा की है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। सो जो अपने लाइन्स ड्रॉ कीतियां ने ये लाइन्स वाला शेडेड एरिया का की है जी आंसर है।
सेम फोर्थ पार्ट है, ये वाला आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए यूनियन है दैन ये इक्वल होगा जी ए इंटरसेक्शन बी दे कॉम्प्लीमेंट, जो कि सेम यही वाला क्वेश्चन बन चुके हैं। सो ये भी अपना जो शेडेड पोर्शन आएगा यही वाला ही आएगा, इस वाले नूं छड्ड के जो एरिया बचे वो सारा की है अपना ਇਹਦਾ सोल्यूशन है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन से भी। सो अपना लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, उस तो बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। सो मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इस तो बाद अपना सॉरी लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूनिवर्सल सेट गिवन है सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल का पूरा सेट है। हुण ट्रायंगल अपनी तीन तरह दी हुंदियां ने, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ते स्केलिन ट्रायंगल। हुण तीनों दे तीनों ट्रायंगल्स का जो सेट है वो अपना की है यूनिवर्स दे विच है। इस तो बाद अपना एक सेट ए है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि एक ਇਹੋ जी ट्रायंगल्स ਦਾ सेट है जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 60 डिग्री ਕੀ ਹੈ ਜੀ नहीं हैगा, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ट्रायंगल्स ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ 60 डिग्री नहीं ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਸਕੇਲਿਨ ट्रायंगल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ टू साइड्स इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बट हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि सारे एंगल 60 ਹੋਣ, कोई भी एक या दो एंगल 60 ना हो, ये अपना आइसोस्केलिन ਹੁੰਦੀ है। स्केलिन ट्रायंगल ਹੁੰਦੀ है अपनी ਜਿਹਦਾ कोई भी एंगल सेम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ 60 डिग्री ना ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਸਕੇਲਿਨ ट्रायंगल भी हो सकती है ਤੇ स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकती है। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ a ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ a ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? सो इस सेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल्स ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ਇਹ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ट्रायंगल ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 60 डिग्री ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ 60 डिग्री ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ यही एक सेट है ट्रायंगल्स का जो अपना ए के कंप्लीमेंट विच आ सकता है। आई होप तुहानू क्वेश्चन क्लीयर होया होवेगा। सो इस तो बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उस वाल आपां मूव करते हैं। सो अपने लास्ट क्वेश्चन दे विच फिल इन द ब्लैंक्स ने, आपां नू 4 फिल इन द ब्लैंक्स ने जो अपने फिल करनियां ने। सो इसदा फर्स्ट पार्ट है जो कह रहा है कि सेट ए यूनियन सेट ए दा कंप्लीमेंट। हुण एक सेट ए है, एक सेट ए दा कंप्लीमेंट है, जो दोनों का यूनियन हो गया उन्होंने इकट्ठे करता, वो अपना की बन जाता है? एक यूनिवर्सल सैट बन जाता है, जो तो मैं स्टार्टिंग में दस्सिया सीगा। सैट ए ते ओदा कंप्लीमेंट जो आप आपस में मिलावांगे दोनों नू यूनियन करांगे तो की बन जाए एक पूरे का पूरा यूनिवर्स बन जाएगा। इस तो बाद अपना फाई दा कंप्लीमेंट। हुण फाई दा कंप्लीमेंट है तो उन्हें एक एग्जांपल दी सी कि खाली है, खाली दा कंप्लीमेंट की होएगा? भरिया होया, ठीक है जी। सो आप फाई के कंप्लीमेंट में आप लिख सकते हैं यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। सो यूनिवर्स इंटरसेक्शन ए, ठीक है जी। हुण पूरा यूनिवर्स है एक, उहदे विचों सैट है ए, दोनों विचों कॉमन की आएगा? सैट ए आएगा, क्योंकि सैट ए यूनिवर्स के विच ही तो है, ठीक है जी। सो सैट ए की आएगा? दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, इन्हां दी इंटरसेक्शन आएगी। इस तो बाद आएगा अपना सैट ए इंटरसेक्शन ए दा कंप्लीमेंट। हुण सैट ए एक अलग चीज़ है, कंप्लीमेंट ऑफ सैट ए अलग है, दोनों के विचकार कॉमन एरिया कोई नहीं होएगा, कॉमन पॉइंट कोई नहीं होएगा। सो इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा। इस तो बाद जी अपना यूनिवर्स का कंप्लीमेंट, हुण भरे होए दा उल्टा की होएगा जी 5 होएगा। इंटरसेक्शन ए, हुण 5 ते ए सैट दे विच जो इंटरसेक्शन की होएगी, दोनों का कॉमन पॉइंट की होएगा? एक तो खाली है सैट, एक सैट ए है। सो खाली ते खाली सैट ए दे विचों ही आपां एक खाली एलिमेंट ही लवांगे, जो है ना कॉमन पॉइंट आएगा वो की आएगा जी 5 आएगा, ठीक है जी। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज 1.5। आई होप तुहानू अज दा कॉन्सैप्ट ते एक्सरसाइज क्लीयर हुई होवेगी, सारे क्वेश्चन तुहानू समझ आए होणगे। दैन इस तो बाद अपनी लास्ट एक्सरसाइज बचती है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 1.6। वो आप डिस्कस करने तो बाद अपना चैप्टर की हो जाना जी फिनिश हो जाना है। उस तो बाद आप स्टार्ट करांगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 2।